Hello students, good morning to all. In previous video we studied about the paragraph writing and now let's move towards the letter writing. Letter writing topic is already done in our previous videos, but today we are going to do more practice about it. So let's read the very first letter. As I said to you, as I explained, the left hand side of the letter we will write down address. Now address, otherwise the name of the person those whom we are writing letter, जिसको हम letter लिख रहे हैं उनका नाम आएगा. To my mother. What does it mean? This letter is written to mother. By whom? Your lovely son. उनके son ने, otherwise उनके daughter ने लिखा है. Date 19th November 2018. Which date we will write down? We will write down recent date. जो date पे letter लिख रहे हैं वो date आएगी वहाँ पे. Subject: telling my mother about my hostel life. Okay, so we can understand from the subject. Even we can write down here on the left hand side only subject. Subject is written to summarize the letter. जैसे कि कोई letter खोले तो उनको क्विकली समझ में आ जाए कि किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है. देयर इज़ नो नीड टू रीड द होल लेटर. लेटर किसके बारे में है वो समझने के लिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सो दैट समरी कैन बी अंडरस्टूड बाय समवन. नाउ वी अंडरस्टूड दैट लेटर इज रिटन टू मॉम एंड टेलिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ. मतलब सन और डॉटर इज देयर इन द हॉस्टल एंड he or she is writing letter to mother. Dear mom, we will start with the greetings. I am fine here. I hope you also fine there. आप कैसे हो? मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, because obviously this person went to hostel. So मम्मी और डैडी को obviously उनके बारे में थोड़ा टेंशन होगा. So in the starting line they are telling that I am fine here and I am hoping that you also fine. First of all, thank you for getting my admission in hostel. This girl or boy telling mom, thank you because they got the admission in the hostel. I want to inform you that I am very happy, and even he or she is very happy in the hostel because they are living over there with their friends. But even though they are missing their mom because they have to do all the work themselves. Suppose washing clothes, cleaning the room and all the things, mom is not there. The study of this hostel is nice. Hostel में जो study करते हैं हम वो कैसी है? अच्छी है. It is nice. We do any work with the time. Everything is getting done on time. Lunch, dinner, snacks, food and everything, study, everything they will be done by the time to time by all the students together. It is not like that you can do your homework anytime, you can sleep anytime, you can play at any time. It is not possible in hostel life because everything is scheduled priorly and you will be given timetable. So you will have to work, you will have to perform according to the timetable over there. And you also know that what is the importance of time in our life, especially for students. Students should always follow the timetable because students are having so many things to read, so many subjects, so many chapters are there, so they will have to follow the timetable. We take breakfast before going to school. So they are going to school early in the morning. So before going to school they are taking breakfast. When we come from school, we take our lunch. After coming back to the school, they are taking their lunch. And in night, we take our dinner near 9 p.m. And around 9 o'clock, we are taking our dinner. I like this hostel. मुझे ये hostel पसंद है. Thank you. Your lovely son. ये भी left hand side ही आएगा. Okay. Here, write your own name. You will have to write down your own name. So, this is letter which is written to mother. So this is informal letter. This is part of your we can say syllabus for term 1. So everybody should learn it properly. Informal letter है तो उसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. Letter
लेटर की जो लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट फिक्स. You will have to write down in your own wordings. You have to express your feelings. You will have to write down greetings, conclusion, and so many things. Okay, so now let's learn the next letter. Now it is about birthday party invitation. We have already written this letter in our worksheet, if I am not wrong. So you will have to read that letter. एंड अलॉन्ग विथ यू विल हैव टू रीड दिस लेटर ऑल्सो. दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो. 94A सेक्टर 13 प्रभु कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई. दिस लेटर इज़ रिटन टू मुंबई 2 मार्च 2021. यहाँ पे हम लिख सकते हैं डियर करण. दिस लेटर इज़ रिटन टू करण. करण को लिखा है, किसने लिखा है? शुभम ने. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सो वी विल हैव टू कंटिन्यू, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट. ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट डाउन सब्जेक्ट इन इनफॉर्मल लेटर्स, बट अगर आप लिखते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू. इवन दो फ्रॉम द हेडिंग यू कैन कम टू नो दिस इज लेटर फॉर द बर्थडे पार्टी इन्विटेशन, but subject is not written. If you wish to write down then you can even write down. It has been a long time since I heard from you. बहुत समय पहले मैंने आपसे heard means सुना था, means हम बहुत टाइम के पहले मिले थे. Where have you been? आप कहाँ पे थे? I hope you are in good health. I expect, मैं ऐसी hope करता हूँ, मुझे ऐसी आशा है कि आपकी जो तबीयत है, आपकी हेल्थ है वो अच्छी होगी. In the second paragraph, we have done with the greeting part. Now let's begin with the another. I have decided to celebrate my birthday on 21st March. मैंने मेरा बर्थडे 21st मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए सोचा है. I think on that. I have decided. In the evening in my house. कहाँ पे है? In the evening at my house only. I have arranged for puppet show and some very interesting games. और वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है? puppet show and interesting games. If you come for my birthday celebration, it would be a great pleasure for me. अगर आप मेरे बर्थडे पे आओगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी. I have invited all our friends and I think you will really enjoy the party. एंड ये फ्रेंड को बोल रहे कि मैंने हमारे सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, सो आपको भी आना है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा. आई होप यू डोंट हैव एनी बिग प्लान्स दैट डे एंड इवन दिस पर्सन इज़ होपिंग. शुभम इज़ राइटिंग दैट आई एम थिंकिंग दैट आपका और कोई प्लान नहीं होगा. विदाउट यू माई बर्थडे सेलिब्रेशन विल बी ट्रूली इनकम्प्लीट. ये बहुत अच्छे से पोलाइट लैंग्वेज में लिख रहे हैं. सी द लाइन्स, हाउ नाइस इट इज़. आपके बिना मेरा बर्थडे थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगा. प्लीज़ डू नॉट डिसअपॉइंट मी. मुझे अनहैप्पी मत करना. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी विथ यू एंड ऑन माई स्पेशल डे. मेरा स्पेशल डे है, मेरा बर्थडे है, तो आई वॉन्ट कि आप यहाँ पे आओ और हम साथ में रहे. होप टू सी यू सुन. योर सिंसियरली शुभम. ओके, सो दिस लेटर इज़ आई थिंक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन वी कैन से. अगर आप भी आपका बर्थडे प्लान कर रहे हो तो इस बार कुछ नया करना. इंस्टेड ऑफ फोन कॉल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और योर रिलेटिव्स टू इनवाइट फॉर बर्थडे पार्टी. आप अपनी कलर स्केच पेन एंड लाइक यू कैन टेक वन पेज एंड ऑन दैट यू कैन राइट डाउन लेटर टू इन्फॉर्म दैम. ओके, सो इट वुड बी डिफरेंट इन्विटेशन. आपका बर्थडे थोड़ा और चार्मिंग एंड डिफरेंट हो जाएगा. यू कैन यूज दिस लेटर एट द टाइम. You will have to be careful for the names and all the things. Suppose यहाँ पे puppet show arrange किया है, but आपने जो भी games वगैरह arrange किया है, food arrange किया है, तो आपको वो लिख देना है. Okay. Now, the next letter is also about the hostel life, but this letter is written to friend. Friend को लिखा है. ये letter किसने लिखा था? हॉस्टल में जो रह रहे उसने लिखा था, बट उनके मम्मा को लिखा था. नाउ वी आर राइटिंग टू फ्रेंड.
One more time, left hand side we will write down address 33 5th Avenue 4th Cross Road, Mumbai 8G, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई में ये लेटर लिखा है। डेट इज़ 18 जून 2020। डियर अनन्या, पूजा ने लेटर लिखा है अनन्या को। हाउ आर यू? शी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीटिंग्स ओनली। डियर अनन्या, हाउ आर यू? हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स? ये सब के बारे में पूछते हैं। दिस इज आई थिंक वेरी नाइस थिंग टू आस्क। हाउ इज़ द वेदर देयर? होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर। सिर्फ 2 लाइन में सब कुछ इन्होंने पूछ लिया। आप कैसे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, वहाँ पे एटमोसफियर वेदर कैसा है, और मुझे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है और मैं भी यहाँ पे लाइक आई एम ऑल्सो गुड हियर। Now in these paragraph, first paragraph will be of greetings, second will be body, so in that we will write down in detail, I have been transferred to boarding school and I am very happy here. Okay, so पूजा ने अनन्या को लिखा है कि मैं हॉस्टल चली गई हूँ, बिकॉज वो लोग फ्रेंड्स थे। नाउ शी शिफ्टेड टू हॉस्टल। सो हॉस्टल के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में अभी बताएंगे वो कि आई एम हैप्पी हियर, आई एम शिफ्टेड टू हॉस्टल। My batchmates and teachers here are very good and helpful. मेरे लाइक बैचमेटीज है, फिर मेरे रूममेट्स है, मेरे टीचर्स है, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। They make me feel here like home, और मुझे यहाँ पे घर जैसा ही फील होता है। The classrooms are very well. Even she is talking about the classroom. Classrooms are very well maintained and spacious. बहुत मेंटेन है, मतलब बहुत अच्छे है क्लासरूम्स, स्पेशियस है, बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत वहाँ पे स्पेस वाले हैं। देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी इनसाइड द कैंपस, और कैंपस जो मेरी हॉस्टल है, तो वो कैंपस में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। वेयर आई स्पेंड 1 hour रीडिंग बुक्स। आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस दैट शी इज स्पेंडिंग 1 hour इन रीडिंग। दैट लाइब्रेरी में जाके वो 1 hour क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। इवन द लेबोरेटरीज हियर आर वेरी वेल इक्विप्ड। लेबोरेटरीज भी कैसी है, वेल इक्विप्ड। वहाँ पे सब भी इक्विपमेंट्स है, सब इक्विपमेंट्स मतलब सब मशीनरीज है, सब जो एक्सपेरिमेंट करने में काम आते हैं वो इक्विपमेंट्स है, तो उसे क्या बोलेंगे, वेल इक्विप्ड। दिस स्कूल हैज़ स्पोर्ट्स हॉल ऑल्सो। ये स्कूल में स्पोर्ट्स का एक अलग से हॉल है, वेर वी कैन गेट द स्पोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। नाउ हियर शी इज टेलिंग दैट स्पोर्ट्स रूम भी अलग से है, एंड सभी स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, सब फैसिलिटीज़ है, एंड वन मोर थिंग, स्विमिंग पूल भी है वहाँ पे। आई विल फील रियली हैप्पी इफ़ यू कैन कम टू माई स्कूल। अगर आप मेरी स्कूल में विजिट करने आओ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मतलब ये जो पूजा है वो अनन्या को बुला रही है हॉस्टल विजिट करने के लिए। सो दैट यू कैन हैव अ लुक इन दी एम्बियंस। यहाँ का एटमोसफियर है, यहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे हम रहते हैं, सब आपको लाइक जानने को मिलेगा। आई होप यू विल ऑल्सो लाइक हियर। I hope you will also like it here, and even I expect, वो क्या होप करते हैं कि आपको भी यहाँ पे अच्छा लगेगा। Although I have made few friends here, और बाकी मैं बताती हूँ आपको कि मैंने थोड़े से फ्रेंड्स भी बनाए हैं यहाँ पे, बट स्टिल मिस यू अ लॉट। बट फिर भी वो अपनी पुरानी फ्रेंड है अनन्या, उसको बहुत मिस कर रही है। कौन मिस कर रहा है? पूजा। वेटिंग टू सी यू सून, एंड शी इज़ asking her to come and visit her school and hostel. So what she wrote, waiting to see you soon, मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगी ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मुझे होप है। Now till then take care of yourself, तब तक आप अपना ध्यान रखना। Take care with love, पूजा। Okay, so I think this is very nice letter written to friend, written by Pooja to Ananya. The very first letter we have seen about the hostel life, which son or daughter is telling to mother, and this one was about the birthday party invitation. So we have to observe one thing, that letter writing lines are not fixed.
वी कैन राइट डाउन इन आवर ओन लैंग्वेज, हम अपनी तरीके से, हमें जैसे अच्छा लगे वैसे लिखना है। खाली फिक्स क्या होता है इसमें, एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, फिर डियर करके जिनको हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो देन इन द स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, हाउ आर योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एट होम वगैरह। देन सेकेंड में हम जो जिसके बारे में लिखा है लेटर वो लिखेंगे। सपोज दिस इज अबाउट बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे हमने बर्थडे पार्टी कैसे अरेंज की है वो लिखा है। लास्ट पे हम लिखेंगे कंक्लूजन, मतलब बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, सो मैं ऐसी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बर्थडे पार्टी में आओगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, वी विल हैव ग्रेट फन टुगेदर। ओके, सो दिस विल बी कंक्लूजन। एट द एंड वी हैव टू राइट डाउन द लेटर रिटन पर्सन, दोज हु हैव रिटन द लेटर, जिन्होंने लेटर लिखा है उनका नाम आएगा लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में। ओके, सो आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। यू विल हैव टू रीड दिस लेटर and you will have to fix in your mind the language of the letter writing, that how we will have to write down. Suppose ये बर्थडे पार्टी है, ये हॉस्टल लाइफ है, अगर एग्जाम में आपको कुछ और भी नए लेटर आए then you should know how to write it down. Okay, so it's done for today students. Bye bye everyone.